میاں محمد نواز شریف کے رائٹ بازو جناب مشاہد اللہ خان صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا, ہم ویلکم کرتے ہیں. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. وارم ویلکم دل کے تھائیوں سے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. استقبال کرنا ہے دل کے سازگاریوں سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے شعر ہیں, یہ میاں محمد نواز شریف کے شعر ہیں, یہ ہمارا دست بازو ہے, یہ مسلم لیگ نون کا سرمایہ ہے. ہم ان کو قدر سیدہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جناب. ماشاءاللہ جی, مشاہد اللہ خان صاحب آج اپنا قیمتی ٹائم, جو ان کا قیمتی ٹائم ہمیشہ ہوتا ہے, ہم کو دیا ہے. ہم تہ دل سے کلر سیدہ والے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا, اور میاں محمد نواز شریف کو جو شعر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ انشاءاللہ تعالی آج کے میاں محمد نواز شریف گو سلیکٹڈ, گو ڈیازی, گو ڈیازی. وہ میاں محمد نواز شریف جس نے ہماری خاطر, ہمارے آرام اور سکون کی خاطر, ہمارے ملک کی ترقی کی خاطر بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں. آپ نے وہاں تک اپنی آواز پہنچانی ہے. مکیا تیرا شو نیازی, مکیا تیرا شو نیازی, مکیا تیرا شو نیازی. میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف. میرا دین بچا لے اے مولا, میرا ملک بچا لے اے مولا, میرا دین بچا لے, میرا ملک بچا لے. یہ چور لٹیرے, یہ چور لٹیرے, بھائی آواز نہیں آ رہی, یہ چور لٹیرے, یہ چور لٹیرے, اے مولا یہ چور لٹیرے میرے ملک کو گھیرے. میرا ملک بچا لے, میرا دین بچا لے. مزہ نہیں آ رہا. ہم جناب اسٹیج میں تشریف فرما جناب راجہ جاوید اخلاص صاحب سابق MLA, ان کو ویلکم کرتے ہیں. راجہ حمید ایڈوکیٹ, صدر پاکستان مسلم لیگ گجر خان, اور چودھری عبدالغفار صاحب, اور باقی جتنے بھی قائدین فرانس سے جناب صدر مسلم لیگ نون فرانس چودھری محمد ریاض صاحب تشریف فرما ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ملک محمد فیاض صدر کو ویلکم کرتے ہیں, اور باقی بھی جو ہمارے بھائی آج کے اس خوبصورت دن پہ یہاں تشریف فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس تھوڑی دیر تک انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام باقاعدہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ خطاب کریں گے. اسی وین پہ ہوگا, کچھ ہماری باتیں ہوں گی جو آپ کو ماننا پڑے گی. جو آج ملک میں جو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو قائدین ہمیں فخر ہے, جو ہمارے قائدین اس وقت جیل کے میں پابند سزا سال ہیں. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے, جس دلیری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں, جو ابھی تک وہ اپنے بات پہ کھڑے ہیں. اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کی غریب عوام کو بچانا ہے. ان کا ایک ہی نعرہ ہے, ان کو اپنی زندگی سے کوئی پرواہ نہیں, اپنے کسی بات سے کوئی پرواہ نہیں. وہ اگر آج جیل کاٹ رہے ہیں تو ہم ہمارے ملک پاکستان کے لیے کاٹ رہے ہیں. مسٹر سادیہ بازیزہ پر ساتھ تشریف فرمائے. ہم جناب محترم پرویز رشید صاحب کو مسلم لیگ نون کے فخر میاں محمد نواز شریف کے رائٹ بازو جناب پرویز رشید صاحب کو حال میں ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ جناب راجہ قمر اسلام صاحب جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. شیر لگاؤ نا, اچھا کرو. ہیلو
मुजाहिदीन का खड़े होकर इस्तेमाल करें। मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों, बुजुर्गों और मुस्लिम लीग के वोटर और सपोर्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप इस गर्मी में तशरीफ लाए। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपकी मोहब्बत मियां नवाज शरीफ से है, आपकी मोहब्बत शाहिद फरहान अब्बासी साहब से है, आपकी मोहब्बत शहबाज शरीफ साहब से है। मैं आज इस वर्चुअल कन्वेंशन में इज्जत-माब जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, इज्जत-माब जनाब मुशहिदुल्लाह खान साहब, सादिया अब्बासी साहब, राजा अतीक सरवर साहब, राजा जावेद इखलास साहब, राजा कमर इस्लाम साहब, तहसील सदर अब्दुल गफ्फार साहब, तहसील जनरल सेक्रेटरी राजा गुलिस्तान साहब, लॉयर विंग के सदर, यूथ विंग के सदर और उसके जनरल सेक्रेटरी, और मैं तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए। अब मैं सबसे पहले अपने तहसील सदर जनाब चौधरी अब्दुल गफ्फार साहब से दरख्वास्त करूंगा और इंतहाई अदब के साथ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्त बहुत कम है। आप सबको चौधरी गफ्फार का सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम। मेरे भाइयों, जिस तरह के स्टेज सेक्रेटरी से पहले एक अर्ज कर रहे थे कि जनाब शाहिद हुसैन साहब ने एक बड़ा कीमती वक्त में दिया है, मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं कि मैं आज अपना वक्त भी इनको देता हूँ। 7 बजे उस हॉल के मालिक ने हमें बुलाया और माजरत की और हमारे साथ हाथ जोड़ दिए। उसने कहा जी कि मुझ पे बड़ा प्रेशर है, मैं आपका प्रोग्राम ये करने नहीं दूंगा। तो मैं आप जिस शख्स को अब दावत खिताब दूंगा, शेख अब्दुल कुद्दूस साहब, हमने जब इनसे रब्ता किया, मेरे साथ राजा नदीम साहब थे, उसके साथ शेख नदीम साहब थे, हमारे यूथ विंग के और साबका वाइस चेयरमैन शाहिद गुजर साहब थे। इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि राय साहब आप फिक्र न करें, अगर कलर का कोई भी हाल ना मिला तो इंशाअल्लाह कलर शहर में टेंट लगा के हम मुस्लिम लीग का कन्वेंशन जरूर करेंगे। और आप दोस्तों भाइयों, जब रात 7 बजे हमारे पास एक परेशानी का आलम था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो हमने इस हाल से रब्ता किया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं शेख अब्दुल कुद्दूस साहब का, राजा नदीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि 6 से 7 घंटे के नोटिस पे हमने यहाँ पे फंक्शन किया। और इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम दोस्त भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने, और वो हाल यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे था और किसी को कोई इतला नहीं, पहले ये उस हाल में गए और ये फिर इस हाल में हुए। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अब दावत खिताब देता हूँ कलर सैदा के साबका मेयर जनाब शेख अब्दुल कुद्दूस साहब को कि अपने ख्यालात का इजहार करें। सेनेटर मुशहिदुल्लाह खान साहब, हमारी बड़ी बहन मोहतरमा बैरिस्टर सादिया अब्बासी साहिबा, जनाब राजा कमरुल इस्लाम साहब, जनाब राजा अतीक सरवर साहब, राजा अमीर साहब, मलक इब्रार साहब तशरीफ लाए हैं, दिल के अथा कर रहे हैं उनसे खुशामदीद। MLA मलक इब्रार साहब तशरीफ लाए हैं, मैडम तायरा और इंजेम साहिबा तशरीफ लाई हैं। ये उस हस्ती की वालिदा है कि जो एक हमारी गरजती हुई आवाज़ है, जो हर स्टेज में कारकुनों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। मरियम और अंजेम साहिबा की वालिदा तमाम रुकावटें और तमाम सहूलतों को अबूल करके आज इस वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। मेरे दोस्तों,
आप ही वो पार्टी का कीमती सरमाया है जिनकी बुनियादों पर जमात की इमारत खड़ी है। मैं आप में मौजूद हर शख्स को, हर वर्कर को और उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का इज्तिमा, आज का ये इकट्ठ किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि हम किस लिए इकट्ठे हुए। मेरे दोस्तों, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर लीडर कैदी बन चुका, बेगुनाह और मासूम हमारे कायदीन को एक झूठे मुकदमात में मुलवस करके उनको पाबंदे सलासल किया जा रहा है कि अगर किसी ने भी मैरिज हाल या कोई भी अपना हाथ किराए पे दिया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हमने बयाने के तौर पर दी पेमेंट भी लोगों ने हमें वापस कर दी, लेकिन जब हम ये हाल लेने में कामयाब हो गए तो फिर दूसरा ओछा ठिकंडा ये किया गया कि ट्रांसफार्मर की तब्दीली के नाम पर कलर सीधा की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई। जनाब सेंटर परवेज रशीद साहब, जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मेरी बहन मोहतरमा सादिया अब्बासी साहिबा, मेरे एमएनए राजा जावेद इखलास साहब, मलक इब्रार साहब, जनाब रदीक सरवर साहब, ख्वातीन, स्टेज पर बैठे हुए जितने भी कायदीन हैं, चूँकि नाम लेते हुए टाइम आपका बहुत लग जाएगा। मेरे भाइयों, यूथ विंग के साथियों, तहसील कलर सेजा के प्रेसिडेंट चौधरी गफ्फार साहब, मेरे कारकुन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कमजोर नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दिन ब दिन मजबूत हो रही है और हम अपने तमाम लीडरान की लगे आज मुल्क का नाम लेने वाला कोई नहीं और 1 या 1.5 बिलियन डॉलर के लिए जिस तरीके से तरले कर रहे हैं ये मौजूदा सिलेक्टेड लीडर, ये उस साजिश की कड़ी है कि पाकिस्तान को दोबारा 1950 की दहाई में दोबारा धकेल दिया गया है। लेकिन मेरा इस बात पर कभी बतौर मुसलमान मेरा कभी अकीदा और ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो दीन का भी मजाक उड़ा रहे हैं भाई, सुन कर हम हैरान रहते हैं कि वो किधर गए हैं। वो बोलते ये खुद महसूस कर रहे हैं कि मैं तो वो उस शख्स को जो है वो जो नबी आज वो किधर है। आसिया मलूना के हवाले से आप देख लें, हर पॉलिसी जो है इसकी ये इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन है। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला इन हालात का हम डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फतह पाएंगे। ये देर है, अंधेर नहीं। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, मेट्रो जैसे मंसूबे दिए आपके मुल्क के अंदर। मेरे भाइयों, लोड शेडिंग का खात्मा, मेरे भाइयों, आज वो हुकूमतें उनके साथ ज्यादती कर रही हैं। ये मुल्क तरक्की करे, उसके बाद हम सब के बहुत संग इस खित्ते का बहुत बड़ा निशान शेख मकान आवासी, जिन्होंने एक साथ वज़ीर आज़म के मनसब पर रहकर पूरे पाकिस्तान की खिदमत की, बेशुमार आज इसके बेंचन में जमा है। मैं आप सबकी अजमत को सलाम करता हूँ। यहाँ जितने भाइयों ने, गरीब साहब और इनकी टीम ने जिस तरह इनको ऑर्गेनाइज किया, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके साथ साथी को खुशामदीद करता हूँ। अब मैं इस शख्स को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। पूरी पंजाब के अरसा दराज तक जनरल सेक्रेटरी रहे और आज जब मैं राजा अदीक सरवर साहब को आपने इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया, ये यकीनन शेख कदूस साहब, नदीम साहब, नज़रीन साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक कारकुन के लिए बहुत एहसास की बात है कि अक्सर मुश्किल वक्त में हमें ऐसे प्रोग्राम के निकाल में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आपने खान बात हुए जितनी ज्यादतियाँ आई उसके बावजूद अपनी क़यादत जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जनाब शेख अब्बासी साहब के साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया, जिस इस्तकामत का इजहार किया, यकीनन वो काबिल सताइश। क्योंकि ये दलील आता है कि आपका ज्यादा बात नहीं दूंगा, हमारी क़यादत इंशाअल्लाह इन जाली मुकदमात, झूठे मुकदमात से शुरू होकर निकलेगी।
کیونکہ اس سلیکٹڈ کی یہی خواہش ہے کہ اس مسلم لیگ کو ختم کرو تو میں شاید رہ جاؤں. یہ پہلی بدنصیب حکومت میں نے دیکھی ہے جو 1 سال بعد اگلے الیکشن کا بیانیہ بنانا شروع ہو گئی ہے کہ دیکھا ہے میں نے سب کچھ جیل میں بند کر دیا. امریکہ گیا وہاں پہ اس نے یہی پیغام دیا کیونکہ اس کے پاس تعمیر و ترقی کوئی پروگرام نہیں ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. میں نے اسپیشل درخواست کی راجہ ظلیم صاحب سے کہ راجہ قمرالاسلام صاحب کو میں خود سٹیج پر بلاؤں گا کیونکہ کہتا ہوں کہ وہ سٹیج پر لائیں اور تشریف لائیں اور اپنے خطاب کریں. آپ نے میرے ساتھ بھرپور جواب دینا ہے. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. دین مسلم لیگ نون اور پنڈال میں تشریف فرما مسلم لیگ نون کے پرجوش متوالوں, میں آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آج مسلم لیگ نون کو جس آزمائش سے گزارا جا رہا ہے, ہمارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے. سی پیک سے لے کر اس ملک سے اندھیرے دور کرنے تک, اس ملک میں خوشحالی لانے تک, اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے کا کام عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان کو ان کی بحیثیت وزیر پیٹرولیم اور بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ان کی بلا جواز اور بے بنیاد گرفتاری کی مذمت کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کر اس قرارداد کے حق میں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو کر اس قرارداد کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج بنیادی مقصد اس اجتماع کا مردوں کو سار کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا. اور میں اس شعر کے ساتھ تشریف رکھیں, اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا. کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا چٹان کی جڑا کھڑا ہے, چاہے برطانیہ کی سرزمین ہو چاہے پاکستان ہو. اس شخص نے اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ کے لیے, پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے وقف کر دیا ہے. اس شخص پہ جتنی بھی مصیبتیں آئی, اسے ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اس پہ پریشرائز کیا گیا, لیکن میں نے اس شخص کی ٹانگوں میں لرزش نہیں دیکھی. میرے دوستوں اور بھائیوں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پرویز رشید صاحب کا کھڑے ہو کر استقبال کریں اور تالیوں کی گونج بن کر استقبال کریں. دیکھو دیکھو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس کنونشن میں شرکت کا موقع دیا ہے, اور میں صرف رسماً آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا, میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ میں ایک ایسے حلقے میں حاضر ہوا ہوں یا ایسے ساتھیوں, ایسے دوستوں کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں جو راجہ قمرالاسلام کے دوست اور ساتھ ہیں. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں راجہ قمرالاسلام کے دوستوں, ساتھیوں اور بزرگوں سے گفتگو کرنے کا موقع حاصل کرتا ہوں. اس لیے کہ جب ہوا اپنا رخ بدلتی ہے تو جو کمزور پرندے ہوتے ہیں,
جن کے پروں میں طاقت نہیں ہوتی، جو اپنا رزق خود نہیں تلاش کر سکتے بلکہ چوری چھپے کی رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ہوا کے ساتھ اپنا رخ بدل جاتا ہے. جس طرح ہوا چلتی ہے ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جن پرندوں کے پروں میں طاقت ہوتی ہے، جن کا عزم ہوتا ہے، جن میں حوصلہ ہوتا ہے، وہ ہوا کے رخ سے مخالف سمت میں بھی پرواز کرتے ہیں. رہنما اپنے ملک کے لیے کیسی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہاں پاکستان کا سر فخر سے اونچا کیا شاہد خاقان عباسی کہ شاہد خاقان عباسی نے جس سمجھداری کے ساتھ ملک کے لیے جب کوئی چیز خریدو تو ایسے عقل استعمال کرو جیسی عقل خاقان عباسی نے استعمال کی. یہ پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں لکھا جس کو یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ لفافہ سیاست ہے، یہاں تو پیسے دے کے خبریں لگوائی جاتی ہیں. خان صاحب یہ دنیا کے ایک معتبر اخبار نے لکھا اور دنیا کے دوسرے مالیاتی اداروں نے تسلیم کیا کہ جس بھاؤ پہ پاکستان کو گیس خاقان عباسی نے لے کر دی، کاش ہمارے پاس بھی کوئی خاقان عباسی ہو اور ہمارے ملک کو بھی اسی طرح سستی گیس لے کے دے سکے. اس لیے بھی گانے کو چھوڑ تو میں ذرا اپنے دوستوں ساتھیوں سے دل کی بات ایسے ہے کہ مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے رہنما مختلف شہروں میں جائیں گے اور مختلف مسلم لیگ کے جو ساتھی اور کارکن ہیں، ورکرز ہیں، ان کے کنونشنز کا انعقاد ہے. خاقان عباسی صاحب نے اس کو شروع بھی کیا تھا. مریم اورنگزیب بھی ان کے ساتھ تھی، ابھی ابراج صاحب نے تقریر کی ہے ان کے ساتھ تھے، ہمارے احسن اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، شاہد اللہ صاحب نے بھی اس طرح کے کنونشنز میں شرکت کی. لیکن یہ کنونشن تھے جس میں مسلم لیگ اپنے رہنماؤں کو بلاتا تھا. یہ جو آپ کا کنونشن ہے یہ کارکنوں نے بلایا ہے اور کارکن میرے جیسے اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو اس لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی نوعیت کا پہلا کنونشن پاکستان میں منعقد کیا. آپ پہلے کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے، پہلے کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے، اور کلر سے اس میں بازی لے گیا. مسلم لیگ کے سارے قائدین اندر ہو جائیں تو مسلم لیگ کا ہر کارکن خود قائد ہے، وہ خود قیادت کر سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں ناانصافی کا نظام قائم کرے گا، وہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو مسلم لیگ کے کارکنوں کے اس کنونشن کو دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ہزاروں ہاتھ باہر نکل چکے کہ قائد اعظم اب آپ بیمار ہیں، آپ کی صحت اچھی نہیں، آپ آرام کریں، میں پاکستان فتح کروں گا اور آپ کے لیے پاکستان حاصل کروں گا. کسی نے یہ کہا تھا؟ کارکن جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ادھر قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوئیں
उधर वो जो यूनियन जैक को एक दिन पहले तक सलाम करता था, भाई 13 अगस्त 1947 को 14 तारीख को पाकिस्तान बनता है। 13 अगस्त 1947 को अयूब खान किसको सलाम करता था? यूनियन जैक, अंग्रेज का जो बच्चा, क्योंकि वो अंग्रेज की फौज में था, वो कायदे आजम के साथ तो नहीं था। आपने कहीं सुना है? किसी ने सुना? कोई बुजुर्ग मुझे यहाँ बता दे, कोई किताबें पढ़ने वाला तालिब इल्म मुझे बताए कि अयूब खान ने एक दिन भी मुस्लिम लीग में गुजारा, एक लम्हा भी कायदे आजम की जद्दोजहद में शामिल हुआ। आखिरी वक्त तक आप अंग्रेज मलका बरतानिया के वफादार थे। कौन होते हैं जो कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते? जो हमें कहता है कि हम टैक्स नहीं देते, वो खुद टैक्स का सबसे बड़ा चोर है। और जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हम टैक्स नहीं देते, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है। तुम झूठ बोलते हो। हम अपनी आमदनियों का इतना हिस्सा अपने बच्चों के पेट में नहीं डालते जितना अपनी आमदनियों का हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान को टैक्सों में अदा करते हैं। नहीं तो तुम भी हमारे नहीं। एक तो मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे गुफ्तगू का मौका दिया गया और इतने अच्छे दोस्तों और साथियों से मेरी मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशीद साहब। आप होगा, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लुत्फ अंदोज भी होंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऐलान करता चाहूँ, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी देर से बैठे हैं। आप मुतमिन रहें, आपके लिए चिकन बिरयानी का इंतजाम किया गया है। कहने का मकसद है कि जब आप खिताब सुनेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी भूख है उसका भी इंतजाम है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अब मैं जिस शख्स को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, ये ना सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी कि उनको कलर सेना के मुकाम पर बुलाया जाए, ये भाई सादिया अब्बासी की भी ख्वाहिश थी। ये आप तमाम कारकुनों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो कारकुन सपोर्टर जो मियाँ नवाज शरीफ से भी मोहब्बत करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी। और मैं मुशर्रफ साहब आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि जब आपने एक शेर पढ़ा, जब हुक्मरान हो गए कमीने, तो इतने लोगों ने इसको पसंद किया कि आप यकीन करें, जब आप ये जलसा हुआ तो लोगों की फरमाइश थी, वो कहने लगे गरीब आप जरूर मुशर्रफ साहब से ये दरख्वास्त कीजिएगा कि वो शेर आज जरूर सियाह को सवाल के साथ बयान करें। मेरे दोस्तों और भाइयों, अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही जनाब मुशर्रफ खान, जो हमेशा के साथ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, नवाज शरीफ के कारकुनों का मान है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और ये साबित कीजिए कि आपकी नवाज शरीफ से मोहब्बत, आपकी मुशर्रफ खान के साथ मोहब्बत। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं नारा लगाऊंगा, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ इस्लाम साहब, राजा नदीम साहब, राजा जलील साहब, राजा अलाल साहब, चौधरी गफार साहब, राजा अतीब सरवर साहब, आपा रियाज साहब, और यूथ विंग के शेख हसन साहब, शेख तौकीर साहब और नगर सईदा से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ये था, तमाम लोग तकरीबन मौजूद हैं, जिन्हें नहीं शामिल होना चाहिए था वो नहीं है। और
की कमी महसूस हो रही है। एक राजा इशफाक सरवर साहब की, अगर वो अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, वो बहुत एक तवील अरसे से अलील है। अगर अलील ना होते तो ये महफिल उन्हीं की सदारत में हो रही होती। तो तमाम लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। दूसरे हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो इस वक्त इसलिए इस महफिल में मौजूद नहीं है। वो तो इस महफिल का असल चिराग तो वही है, लेकिन उस चिराग को पाबंद सलासल कर दिया गया है नाकर्दा गुनाहों की बिना पे। आज वो इस वजह से जेल में है कि जब 2013 में उन्हें पेट्रोलियम का वजीर बनाया गया था तो इस मुल्क में गैस नहीं थी। इस मुल्क की इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिलती थी। इस मुल्क की माएँ और बहनें जब सुबह उठ के चूल्हा जला के अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती थी और स्कूल भेजने से पहले उन्हें नाश्ता कराना चाहती थी, और जब वो चूल्हा जलाती थी तो गैस नहीं होती थी, लिहाजा बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाया करते थे। इस मुल्क में 2013 में पेट्रोल पंपों पे मीलों लंबी सुजुकियों की, मोटरसाइकिलों की, वैगनों की, छोटी कारों की लाइनें लगी होती पूरे मुल्क में कि थोड़ी सी गैस मिल जाए गरीब आदमी अपने चंद पैसे बचाने के लिए, लेकिन गैस न आ रहा है। आप ये देखिए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। हुकूमत नवाज शरीफ की आती है, पेट्रोलियम का वजीर खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया जाता है। आप ये देखिए प्राइस करने के लिए खुद एक्शन किया और उसे कहा कि 2-2.5 करोड़ जमा करा दो, ये क्लियर है। और हमारी ये जिनके साथ एक हारून अख्तर थे, दोनों सेनेटर थे, इनकी वो सेनेटरशिप खा गया। उसने एक जगह एक उसकी क्लिप है कि 4 मैं तो वैसे ही फारिग कर दूंगा। वो मतलब कि ये जो इनके साथ जितनी ज्यादती हुई है, और पता है क्यों हुई है, ये सादिया अब्बासी भी कोई कम नहीं है शायद खाकान से। ये भी जब सेनेट में खड़े होकर अपना किरदार अदा करती थी ना, तो बड़े बड़े मर्द इनके सामने पानी भरा करते थे। यहाँ को देखा हाल है। मैं कोई इनकी तारीफ बारी उस तरह से नहीं कर रहा, अगर इन्होंने ना किया होता मैं कुछ ना कहता। परवेज रशीद साहब के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये तो बचपन से मैं देख रहा हूँ, एक कॉलेज में पढ़े, तकलीफें उठाई, जेलें काटी, मारे खाए, लेकिन अपने नजरिए को इन्होंने नहीं छोड़ा। और वही नजरिया है कि जो आज एक चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ है। इनकी सोच नवाज शरीफ के साथ है, इनका जिस्म नवाज शरीफ के साथ है, इनकी जान नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है। और इसी तरह से जिस तरह से राजा सरवर इस्लाम इन्होंने भी एक तारीख बनाई है। बुरे वक्त में होता ये है कि लोग अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होते, गिले नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहते कि मैं ये कहता था, मैं वो कहता था, मेरी बात नहीं सुनी गई। हालांकि ये भी सारी किस्सा कहानियां हैं, ये परवेज रशीद साहब को पता है। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि ये हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर सा पर्दा से भी होंगे, लेकिन इनके ऊपर ये सादक आता है। अब ये कोई बात है कि भाई आप हमने कभी रोका? आपने 126 दिन बैठ के वहां वारदातें डालते रहे धरने के नाम पे, हमने कभी रोका? आपके पास ऐसा सामान मौजूद है जो हमारे पास नहीं है, आपके सामान को रोकना चाहिए, हमने कभी नहीं रोका। आपके पास दिमाग और दिल के सुकून के लिए बहुत सारी अद्वियात भी मौजूद है, हमने उसकी भी सप्लाई जारी रखने दी। आपने क्या
आपने क्या जमहूरियत की खबर नहीं बनाई टी चौक? आपने पार्लियामेंट में हमला नहीं किया? आपने ये नहीं कहा कि हम वज़ीर आज़म को बाल से पकड़ के खींचेंगे और घसीटेंगे? आपने पीटीवी पे कब्जा नहीं किया? ये मौजूद देखें, अभी तो गरीब वक्त है मुल्क में कि मौजूदा मुल्क का सदर कठपुतली और कठपुतली वज़ीर आज़म सिलेक्टेड, इन दोनों की वॉइस मैसेज मौजूद है टेलीफोनिक गुफ्तगू कि जब पीटीवी का कब्जा हुआ तो वो रिपोर्ट दे रहा है इमरान खान को, आरिफ अलवी, कि जब कब्जा हो गया है। आज मुनकर हो जाते, मुनकर होने में तो इसलिए कि ये होशो हवास में नहीं होते, इन्हें पता ही नहीं होता, इसलिए कि एक सूटा लगाओ तो फिर आदमी मतलब आलम वाला में होता है ना। तो वो इसीलिए जो आपके साथ ज्यादती की ना इन्होंने हाथ में, तो वो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि दिन जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं और कितने कम दस हैं ये गुब्बारे चंद फूकों से भूल जाते हैं। पार्टी का एक एक रुपन अपनी जान में तो खेल सकता है, लेकिन इनके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन कानून शिकनों से हम लड़ाई जारी रखेंगे। इन आइन को बेहुरमत करने वालों के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए जारी रहेगी कि नवाज शरीफ की जात का कोई मसला नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? 70 साल का एक बंदा है जो बीमार है, उससे आप रोजाना आप झूठ बोलते हैं, कहना नहीं देते, तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास देने को है क्या? और जिससे ये ऐसे ही है कोई बच्चा उठ के अपने बाप से कहे, दूसरे से बड़ा कहे कि मैं तुझे एनआरओ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ तुम सबका बाप लगता है रिश्तों में, इसलिए कि वो तुम्हें देता रहा है, तुम क्या उसको दोगे? वो उसका एजेंडा और है, तुम्हारा एजेंडा और है। तुम तो लूट मार कर रहे हो। तुम ऐसे सादिक और अमीन हो कि जिसकी ईमानत और सदाकत के डंके पाकिस्तान में नहीं बचते, कैलिफोर्निया की अदालत में भी बचते। कौन सा ऐसा एंगल है करप्शन का जो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है? तुम नवाज शरीफ से लड़ना चाहते हो, वो तो पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहा है, वरना अपनी जात के लिए लड़ना होता तो वो नहीं रहता। आपके अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। बमा बहुत शुक्रिया जनाब। बैरिस्टर सादिया अब्बासी साहब को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग जब कोटा के मुकाम पे जलसा हुआ, कलर सैदा में हुआ, तो बैरिस्टर शायद सादिया अब्बासी साहब कलर सैदा में आज पहला खिताब होगा, तो वो कहने लगे कि जब इनके भाई को पाबंदी सलासल किया गया, उसको बचाने के लिए या उसकी तहरीक के लिए निकली। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ को पाबंदी सलासल किया गया, तो चाहे नैब में कोई भी पेशी होती थी, शहदुल्ला साहब भी होते थे, रशीद साहब भी होते थे, हर पेशी पे ये वहाँ मौजूद होती थी। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, अगर बारिश भी है तो मैंने इनके हाथ में छतरी दी और इन्होंने अपनी मोहब्बत और अकीदत जिस तरह ये आज साबित कर रही है कि इनके भाई से है, मेरे भाइयों और कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसी तरह इनकी हकीकत पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। मैं आपको इसलिए बताता चलूँ कि इन्होंने आपकी भी जंग लड़ी है। जब शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे तो ये अपने भाई को कहती थी कि शायद आप पाकिस्तान के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने इन्हीं कलर वालों के पास जाना है, काहुटा वालों के पास जाना है, मरी वालों के पास जाना है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें। अगर जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क को आगे लेके गए, तो शाहिद खान अब्बासी का नाम भी उसी तरह रखा जाएगा जिसने मियाँ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। उसने अपने इलाके की परवाह नहीं की। शायद आपके वो तरक्याती काम ना करवा सके, लेकिन मेरे भाइयों
बुजुर्गों, आपके कायद मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान को उसने आगे ऐलान करती है कि शरीफ पहले नवाज शरीफ होगा, उसके बाद शाहिद खान होगा। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा और रावलपिंडी की बेगम ताहिरा औरंगजेब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद अल्फाज आपके साथ शेयर करें। तमाम मुंतज़मीन जलसा करना सकता के लॉयर्स में MSF यूथ राजा ज़रीफ जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, मेरे भाई मुशाहिदुल्लाह साहब, सादिया अब्बासी साहिबा, निसार तनवीर साहिबा, अतीक सरवर साहब, दीगर तमाम मौजूदीन इलाका मुस्लिम लीग के कारकुनान, अहदेदारान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर तौर पर आपको एक पैगाम दूंगी। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, जेल में बैठे हुए मोहम्मद नवाज शरीफ की हिम्मत है, हमजा शहबाज की हिम्मत है, राना सनाउल्लाह की हिम्मत है, साद रफ़ीक की हिम्मत है, उनके भाई सलमान रफ़ीक की हिम्मत है, जितने असीरान हैं मुस्लिम लीग के जेलों में, शाहिद खान अब्बासी समेत, आपका इस कड़े वक्त में पार्टी का साथ देना, इस जलसागाह में आना, इस वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाना, अपनी ज़िंदगी का इस कड़े वक्त में वक्त निकाल के आना, हम आपके तहे दिल से मशहूर हैं। तशरीफ लाए और हम सबकी इज्जत में इजाफा किया, हमारी हौसला अफजाई की। हम दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। फ़क्त वक्त की किल्लत की वजह से मैं सबका फर्दन नाम नहीं लेना चाहती। जो कुछ हमारे मुकर्रीन ने कहा उसमें मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये सिर्फ कहूँगी कि एक ही लीडर है पाकिस्तान का, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हम सब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हमें फ़ख्र है उनकी जुर्मबंदाना, उनकी दिलेराना क़यादत पे। हमें फ़ख्र है कि हमारी सियासत जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मंसूब है। मेरा ईमान है और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत से वाबस्ता रहे और इंशाअल्लाह ये वाबस्ता रहेगा। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी इज्जत बख्शी। आज का कन्वेंशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आज का कन्वेंशन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग शाहिद खान अब्बासी। आज का कन्वेंशन लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब राना सनाउल्लाह। आज का कन्वेंशन लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ। आज का कन्वेंशन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग साद रफ़ीक साहब। आज का कन्वेंशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट सलमान रफ़ीक साहब के नाम है, इसलिए कि इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो अपने कायद मोहतरम की कुर्बानियों की वजह से वो आज उनके साथ खड़े हैं और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ खड़े हैं। हम दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं राजा ज़रीफ साहब और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं पता